Hello students, welcome to the class. So this is inverse trigonometric functions for class plus 2. So in the recent lectures what we did, we started with the inverse trigonometric functions, their graphs, and we started with their properties and some of their questions. So we will continue with the same. So what we did in the recent lectures, I will just briefly tell you. We have done some of the properties in tangent inverse x plus tangent inverse y is equal to tangent inverse x plus y upon 1 minus xy, and 1 minus xy should be greater than 0. and इसी तरह we have, अगर माइनस होएगा ऊपर अपने माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा, it will be minus and plus. Okay, so we will continue with the questions in the same. So just look at this question. We did the various formulas, and just look at this question. Question is, so this question is a tangent of, prove that tangent 1 upon 2 sine inverse 3 by 4 is equal to 4 minus रूट 7 by 3. सो बेटा इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इनवर्स में चेंज कर लेते हैं. तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 3 अपॉन 4 1 by 2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा ये 4 माइनस रूट 7 by 3. सो साइन इनवर्स 3 upon 4 will be equal to 2 tangent inverse 4 minus under root 7 by 3. So beta, if you remember, I have given you properties for 2 tangent inverse x for sine, cos and tan. We can convert this to sine as well as cos as well as tan. So various 3 properties जो इसकी थी वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. 2 tangent inverse x is equal to sine inverse 2x upon 1 plus x square, cos inverse upon 1 minus x square 1 plus x square is equal to tangent inverse, this is 2x upon 1 minus x square. So we can use either of these to convert. So we will be using for sine, because on the left hand side we have got sine inverse, and same we will be converting on the right hand side. उसी तरह से हम उसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हमारा 3 by 4 आना चाहिए. तो हमने इसमें क्या करना है, सो व्हाट वी डू, 2 टेंजेंट इनवर्स 4 माइनस अंडर रूट 7 by 3, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x. 2x means this will be 4 minus root 7 upon 3 upon 1 plus 4 minus root 7 upon 3 whole square. Okay, so we will solving this, and this has to be, we have taken right hand side, and this will be proved equal to the left hand side. Okay, so now this will be your sine inverse 8 minus 2 root 7 upon 3, and this is 1 plus 4 minus root 7 whole square upon 9. So 9 will go to the numerator, so this will become your sine inverse. So this is 9, 8 minus 2 root 7 upon 3. This is 9 plus 4 minus root 7 whole square. So what we did, we have multiplied here with the 9, and we have taken 9 to the numerator. So now we will be solving this. So with this what will happen, you can check that if we multiply it, इसको cancel कर दो, so this will be your sine inverse 3 into 8 is 24 minus 6 root 7 upon, now this is 9 plus, now we will apply the formula here, a minus b whole square. So that is given by, you are very much intelligent, you can develop this formula, a square plus b square minus 2ab. So this will be 4 square is 16, root 7 square is 7 minus 8 root 7. So this will be your, now
we can change this to sine inverse 24 minus 6 root 7 upon this will be 23 and 9 32 minus 8 root 7. So what will be there? यहाँ से कॉमन क्या आएगा? ऊपर से 3 ले लेते हैं, नीचे से 4 ले लेते हैं, क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स. सो दिस विल बी 3. अगर कॉमन लेते हैं ऊपर से क्या आ जाएगा? 8 माइनस 2 रूट 7 और नीचे से 4 लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 8 माइनस 2 रूट 7. सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. व्हाट वी आर लेफ्ट विद? साइन इनवर्स 3/7 which is equal to left hand side. So you can check left hand side and right sides are equal these. So hence this has been proved. Now we will move to the next part, and before we move to next part, let's first erase this part to do the next question. Okay. Now next question in this is, beta, what you have to do if sine inverse x upon 5 if sine inverse x upon 5 x upon 5 plus cosecant inverse 5 by 4 is equal to pi by 2, then x is, then value of x is क्या हो सकता है? ये 1 3 4 5. तो इसमें से देखना है क्या इसमें आंसर आएगा. सो ये 2007 का बेटा क्वेश्चन है. तो इसमें हमने क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है. तो ये हमारा साइन इनवर्स है. अगर इसको हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकें तो हम सीधे सीधे वैल्यू निकाल सकते हैं. तो सॉल्यूशन में क्या है? हमारे पास एक प्रॉपर्टी की है बेटा, कल हमने की थी. क्या था वो? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2. सो इसी के प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे करेंगे. तो हमारे पास क्या है? साइन इनवर्स x अपॉन 5 प्लस कोसेकेंट इनवर्स 5 बाय 4. तो इसको हम चेंज करते हैं. क्या आ जाएगा ये? अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लेता हूं, वहां पे हाइपोटेन्यूज में 5 ले लेता हूं और परपेंडिकुलर हमारा 4 है, तो ऑब्वियसली ये हमारा 3 आ जाएगा बेस. अब इसको मैं कॉस में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x अपॉन 5 विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5. ओके. सो ये हमारा बन गया कॉस इनवर्स 3 बाय 5 इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो ऑब्वियसली अगर ये हमारा प्लस करके पाई बाय 2 बन रहा है तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल हमारे सेम होंगे. These two will be equal. So it means क्या है? x by 5 is equal to 3 by 5. 5 से 5 कैंसिल कर दो, x is equal to 3 आ जाएगा. ओके. Then moving on to the next part. Next question करते हैं. उसमें क्या है देखो. So ये हमारा क्वेश्चन है सितंबर 5 2020 का. So इसमें क्या है देखना. टेंजेंट इनवर्स 1 upon 3 टेंजेंट इनवर्स 1 by 7 टेंजेंट इनवर्स 1 by 13 अप टू 10 टर्म्स. 10 टर्म्स तक हमने सम करना है. दिस इज इक्वल टू टेंजेंट एस. ओके. सो टेंजेंट एस क्या होगा? सो हमने निकालना है. देन
टेंजेंट एस इज इक्वल टू, तो क्या है यहाँ पे है 5/6, बी में क्या है 5/11, सी में क्या है -6/5 और डी में क्या है हमारा 10/11 है। ओके, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 टर्म्स है, या तो इसमें सीधा ही फॉर्मूला लगा देते हैं हम, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, आगे भी टेंजेंट सी प्लस टेंजेंट डी, दो दो के पेयर कर लें, फिर वो 5 बन जाएंगे, फिर दो दो के और करके फिर 2 आ जाएंगे, फिर तीसरे के साथ करके तो हम आंसर निकाल सकते हैं, बट दैट विल बी मच लेंथी, सो वी विल बी यूजिंग एन इजी अप्रोच। तो हम क्या करते हैं, पहली टर्म लेते हैं, तो क्या होगा फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है, सो टेंजेंट इनवर्स 1/3 को मैं क्या करता हूं, ये लिख सकते हैं हम टेंजेंट इनवर्स 2 - 1, 1 को हम क्या लिखेंगे 2 - 1, और नीचे 3 को ब्रेक करते हैं 1 + 2 × 1। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या था, टेंजेंट इनवर्स x - y 1 + xy, तो ये हमारा x हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 2 और y हो जाएगा 1। तो हम ये किसके इक्वल लिखते हैं, दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, टेंजेंट इनवर्स 1/3 जो हो जाएगा, दैट विल बी टेंजेंट इनवर्स 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। उसी तरह से हम 1/7 को करते हैं, 1/7 को कैसे करेंगे, दिस विल बी योर, ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3 - 2 1 + 3 × 2। इसी तरह से इसको क्या करेंगे, 4 - 3 1 + 4 × 3, सो हमारा दूसरा क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1/7 के लिए क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट इनवर्स 3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 2। इसी तरह से टेंजेंट इनवर्स 1/13 के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 - 3 तो ऊपर आ गया, नीचे क्या आ जाएगा 1 + 4 + 3, 1 + 4 × 3, सो ये आ जाएगा हमारा टेंजेंट इनवर्स 4 माइनस टेंजेंट इनवर्स 3। सो इसी तरह से हम 10th टर्म लिखेंगे, 10th टर्म में क्या आएगा, देखो फर्स्ट टर्म में बाद में आया ना 1, सेकंड टर्म में बाद में आया 2, थर्ड टर्म में बाद में आया 3, तो ये माइनस तो हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 10। इधर क्या आएगा, अगर 1 था यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 के लिए 3 आ रहा है, 3 के लिए 4 का आ रहा है, तो इसलिए हम जनरलाइज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी टेंजेंट इनवर्स 11। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करेंगे, इन सभी का सम करना है, लेट दिस बी इक्वल टू सम बी इक्वल टू एस, तो एस किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हम करते हैं, एस विल बी इक्वल टू, अब देखो ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट गया, ये इससे कट जाएगा, इसी तरह से कट जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, टेंजेंट इनवर्स 11 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। ओके, अब इस पे फिर फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, दिस विल बी, एस विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 11 - 1 1 + 11 × 1, सो एस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 10/12 हो जाएगा, सो टेंजेंट एस क्या आ जाएगा 10/12, या इसको कैंसिल करके 5/6 आ जाएगा। ओके, सो आंसर हमारा आ गया 5/6, कौन सा है, ए वाला आ जाएगा, सो दिस विल बी योर आंसर। ओके बेटा, देन नेक्स्ट इज, इसी तरह से आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन ये आया था 2020 में, और इसी तरह का क्वेश्चन एक पहले भी आया था, वो हम करते हैं, सो लेट अस डू दैट क्वेश्चन, सिमिलर इसी बेसिस पे है, तो वो कैसे करना है, देखो इधर, सो पहले इसको हम रब करते हैं, देन वी विल डू द क्वेश्चन।
नेक्स्ट में क्या है बेटा, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। तो ये हमारा है अप्रैल 23, 2013 का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है ये? तो ये क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर n प्लस 1, टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर 3n प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 19 n प्लस 20। तो ये किसके इक्वल है? देन टेंजेंट s इज इक्वल टू, ये s के इक्वल है, तो हमने क्या निकालना है? देन टेंजेंट s इज इक्वल टू, तो क्या आएगा ये? सो s हमें क्या दिया है? ये वाला s दिया है हमें, ठीक है। s इज दिस। सो हम फर्स्ट टर्म देखते हैं, इसमें आंसर क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन है 20 अपॉन, ए ऑप्शन है 20 अपॉन 401 प्लस 20n। बी में क्या है? n अपॉन n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 1। सी में क्या है? 20 अपॉन n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 1। और डी में हमारे पास क्या आएगा? दिस इज n अपॉन 401 प्लस 20n। सो इसको हमने सॉल्व करना है। सो सेम उसी तरह से फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले तो हम सभी का एक एक टर्म करके देखते हैं क्या आएगा। सो फर्स्ट टर्म को पहले हम करते हैं। सो वी हैव टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर n प्लस 1। क्या बन जाएगा ये? टेंजेंट इनवर्स n प्लस 1 माइनस n, नीचे 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। तो ये वही फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सो ये किसके इक्वल होता है? टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y, दैट इज टेंजेंट इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स n। सेकंड में देखो क्या आएगा? टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 प्लस 1। हम इसको लिख देते हैं, तो इसके हमारे फैक्टर बन जाएंगे हमारे टेंजेंट इनवर्स, क्या आ जाएगा ये? n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 अपॉन ये हमारा 1 प्लस n प्लस 2 और n प्लस 1, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स n प्लस 2 माइनस n प्लस टेंजेंट इनवर्स n प्लस 1। तो इसी तरह से चलते चलते अब लास्ट टर्म पे चलते हैं। तो वो सीधे ही दे रखी है हमें, क्या है? हमें टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 19 n प्लस 20। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स n प्लस 20 माइनस n प्लस 19 अपॉन 1 प्लस, क्योंकि n से n घट जाएगा, 20 माइनस 19 1 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n प्लस 19 n प्लस 20। सो ये बन जाएगा हमारा टेंजेंट इनवर्स n प्लस 20 माइनस टेंजेंट इनवर्स n प्लस 19। तो ये इसमें क्या कट जाएगा? ये कट गया इससे, ये इससे कट गया, तो ये कट जाएगा।
ओके, और हमारे पास बच क्या जाएगा, s विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स n प्लस 20 माइनस टेंजेंट इनवर्स n। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स n प्लस 20 माइनस n 1 प्लस n प्लस 20 इंटू n। ये कट गया इससे। सो टेंजेंट x क्या हो जाएगा, टेंजेंट s विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 20n, और टेंजेंट s इज इक्वल टू 20 अपॉन n स्क्वायर 20n प्लस 1। सो ये बन जाएगा, सो दिस विल बी टेंजेंट s। सो कौन सा आंसर बन गया, ये c हो गया। सो c इज द करेक्ट आंसर, सो दिस विल बी देयर। सो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सो इनवर्स में से इसके आने के चांसेस हाईली प्रोबेबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी होती है। सो जस्ट गो थ्रू these types of formulas and you can secure your marks in inverse trigonometry. Okay, so let's erase this part and move on to the next part. नेक्स्ट क्वेश्चन है, so here we have to prove that 3 sin inverse x, prove that 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube। सो ये बेटे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले लो या राइट हैंड साइड ले लो, सेम चीज है। हम राइट साइड से करते हैं। सो RH में हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो बेटा ये चैट बॉक्स में बताओ ये किसके इक्वल होता है। Yes, Rakesh, Zenia, they have given me the correct answer. This is equal to sin 3 theta. So we can change this to, this is sin 3 theta, sin inverse cancel, this is equal to 3 theta. तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x। सो थीटा में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू साइन इनवर्स x, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से, देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हमें, ये देखो क्वेश्चन इज इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y, देन वी हैव 1 upon x square 1 upon y square is equal to 1 upon x square minus 1 upon y square is equal to 1, x square plus y square is equal to 1, और x square minus y square is equal to 1। सो ये हमने चेक करना है। कैसे हम चेक कर सकते हैं, वी आर गिवन विद द रिलेशन, और उसमें हमने ये देखना है कौन सा रिलेशन इसमें ट्रू है। ओके, सो अब हम रिलेशन को लेते हैं। क्या रिलेशन हमारे पास, दिस इज सोल्यूशन। सो इसमें हमारे पास दिया है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y। तो इसको हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो साइन इनवर्स को हम टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, या टेंजेंट को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनी ऑप्शन वी कैन यूज, ओके वी यूज द सेकंड ऑप्शन। लेट अस चेंज दिस टेंजेंट इनवर्स y। सो टेंजेंट इनवर्स y मतलब ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 1, एंड दिस विल बी 1 प्लस y स्क्वायर। ओके,
नाउ टेंजेंट इनवर्स y विल बी इक्वल टू, ये साइन इनवर्स में क्या आएगा, y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही बन जाएगा ना। तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो अब हमारे पास इनवर्स सेम है तो हमारे एंगल भी सेम होंगे, तो वी कैन राइट फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, स्केयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अगर इसको हम स्केयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, और भी कैन से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो अभी हम आंसर के पास नहीं पहुंचे, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, एक साइड हम 1 बना लेते हैं क्योंकि 1 सभी के पास 1 तो है ही है, तो हम क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वी गेट। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 1 आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दिस विल बी 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर। ओके, सो ये बन गया हमारा 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सेकंड वाला आंसर आ जाएगा बेटा, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, सो टेक ए नोट ऑफ इट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वी कैन कंटिन्यू विद द सेम नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो जस्ट go through this part, take a look of it, and I will rub now so that we can do next part. Okay, तो ये हमारा ऊपर मिट गया, इसको हम लिख देते हैं चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो कंटिन्यू विद द सेम, नेक्स्ट पार्ट है प्रूव दैट, हमें क्या दिया है, इफ x इज बिटवीन, इफ x बिलोंग्स टू हाफ एंड 1, x इसके बीच में लाई कर रहा है, then cos inverse x plus cos inverse x by 2 plus root of 3 minus 3x square upon 2 is equal to pi by 3. Okay, so what we can do, we can use the formula for this cos inverse x plus cos inverse y, but before that we will simplify this part. So what will be there, solution is, this is cos inverse x plus cos inverse, let us see what we can do here. So this is 1 by 2 into x plus, if we take under root 3 from here, under root 3 by 2, this will be 1 minus x square and root here is there. Okay, now what we can do, this is your, now we can use this option, we know that cos inverse x plus cos inverse, so ये दोनों हमारे cos होने चाहिए, तो 1 by 2 को हम किस में cos में लिख सकते हैं, this is cos pi by 3, let this be cos a, so x is equal to cos a मान लिया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos साइन a बन जाएगा ना ये, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर a जो होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है cos स्क्वायर साइन स्क्वायर a, और उसका रूट लेंगे वो बन जाएगा साइन a. ओके, सो दिस विल बी प्लस साइन पाई बाय 3 होता है ये अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा साइन a. ओके,
सो ये बन गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, ये हमारा बन जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। एक्चुअली b यहाँ पे a के लिए है, सो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos ऑफ a माइनस बी पाई बाय 3 माइनस a। ओके, सो ये बन जाएगा हमारा a माइनस 5/3। ओके, x इज इक्वल टू कॉस a किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स x के बराबर होगा। ओके ठीक है, सो ये इससे कैंसिल हो गया, कॉस इनवर्स x प्लस 5/3 माइनस a। सो यहां से हम a भी निकाल सकते हैं, a क्या होगा, a विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स x, सो दिस विल बी कॉस इनवर्स x प्लस 5/3 माइनस कॉस इनवर्स x, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5/3। सो यही हमें चाहिए था, दैट वी हैव रिसीव्ड, वो आ जाएगा यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्या है, क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस कॉस ऑफ tan इनवर्स 2√2। ओके, सो इसी वैल्यू को हमने फाइंड करना है। सो दोनों की अलग अलग वैल्यू निकल जाएगी। सो पहले तो हमारे पास है साइन 2 टेंजेंट इनवर्स, उसको हम पहले साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला हमें मालूम ही है, क्या होता है ये, साइन ऑफ, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2x, 2 इंटू 1/4, 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर। अब इसको हम कॉस इनवर्स में चेंज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे जिसमें टेंजेंट हमारा 2√2 हो। सो ये हमारा 2√2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 8 और 1 9, ये साइड हमारी आ जाएगी 3। सो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने थर्ड साइड पता कर ली। तो अब इसको हमने कॉस इनवर्स में चेंज करना है, ये हमारा हो जाएगा कॉस इंटू कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स में क्या आएगा, 1/3। सो इसको हम लिख देते हैं 1/3। ये दोनों इक्वलेंटी है, टेंजेंट इनवर्स 2√2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। सो हमने कल किया था, कैसे हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में किया था, हाउ वी कैन कन्वर्ट वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन फंक्शन टू अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, सो वी कैन कैंसिल दीज टू, ये भी कैंसिल हो गया, क्या रह गया, ये 1/2 रह गया, ये अपॉन 1 प्लस 1/16 इज इक्वल टू प्लस 1/3। सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ये 17 हो गया, 16/17 आ जाएगा, ये प्लस 1/3, ये 8 से कट गया। सो दिस इज 8/17 प्लस 1/3, दिस इज इक्वल टू 51, ये हो गया 24 प्लस 17 41/51। सो दिस विल बी योर आंसर, ये आंसर आ जाएगा आपका। सो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो अब इससे आगे करते हैं, देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रब दिस पार्ट, टेक ए नोट ऑफ इट, हैव ए लुक ओवर इट, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। So next is continuing with the same, what we have to prove, that is tangent inverse 1/2, tangent inverse 1/2 plus tangent inverse 1/5 plus tangent inverse 1/8 is equal to 5/4.
So what will be there? Just check here what we can do. So just take these two then with this, or we can just rearrange the terms. So this will be your tangent inverse 1 by 2 plus tangent inverse 1 by 5 is equal to pi by 4 minus tangent inverse 1 by 8. So we will apply formula to this. So this will be tangent inverse 1 by 2 plus tangent inverse 1 by 5. इसको हम क्या लिख सकते हैं? tangent inverse 1 भी लिख सकते हैं, because tangent inverse 1 is pi by 4 minus tangent inverse 1 by 8. So this will be tangent inverse x plus tangent inverse y. This will be your tangent inverse x plus y upon 1 minus 1 by 10, and this is equal to tangent inverse 1 minus 1 by 8. This is your 1 minus 1 by 8, 1 plus 1 by 8. So just check these two, tangent inverse. So 5 to 7 by 10 upon, this is 9 by 10, and again here also tangent 7 by 8 and 9 by 8. So this will be equal to 7 by 9 is equal to 7 by 9. So LHS is equal to RHS. So hence this thing is proved. So यही हमने prove करना था. So that has been proved. Okay. Then moving on to the next question. Next part is, just look at this. Show that क्या इसमें साइन इनवर्स 3 by 5 माइनस साइन इनवर्स 8 by 17 is equal to cos inverse 84 by 85. So इसमें बेटा हमने वो प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसमें हमने बताया था साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y. तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है? आई एम मेंशनिंग दैट प्रॉपर्टी हियर. प्रॉपर्टी इज sin inverse x minus sin inverse y is equal to sin inverse x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square. So using the same property we can write for this is left hand side we take it here sin inverse. What is x here? 3 by 5. साथ में क्या है? root 1 minus y square. So this will be root of 1 minus 8 upon 17 square and minus y. Y is 8 by 17 under root 1 minus 3 upon 5 square. So this will be sin inverse. So 3 by 5. So 17 square is 289 minus 64. So this is 15 by 70 minus 8 by 17 into, so this will be your 4 by 5, 24, 5 minus, this will be 4 by 5, okay. So this will come out to be sin inverse 45 by 85 minus 32 by 85. So this will become sin inverse 13 upon 85, okay. Now we have to convert it into cos. So for this what we will do, we will make the triangle here sin inverse. This is 13, this is 85. Now we will find the third side. Third side can be given as 85 square minus 13 square. So this will be equal to root of 98. एक बार इनको ऐड कर लो, एक बार माइनस कर लो, क्या हो जाएगा ये 72. This will be your 7 into 6 into 2. This is equal to 84. So third side हमारी आ गई 84. Okay. And we can write, अब sin inverse को हमने cos inverse में लिखना है, तो क्या आएगा? Base upon hypotenuse. So this will be equal to cos inverse 84 by 85.
तो ये सेम ही आ गया जो हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो जो रिजल्ट हमने देना था वो हमने प्रूव हो गया। Okay beta, we did many of the questions in using the properties and many more are left, so that will be covered in your next lecture. Hope you are enjoying the lecture, and in case of you have got any doubt, just contact with us, give your doubts, so that we are eagerly here to solve your doubts. So let's hope that you will clear all your queries. So okay, nice to meet you. Hope to meet you next time. Okay, thank you.